باقی ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی کاوش اور محنت سے کتاب بخاری کی ترتیب دی. ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے کئی میل 100 میل تک چلے جاتے پیدل اور ایک ایک حدیث پاک لے کر کے آتے اور اس حدیث پاک کو جس راوی سے لیتے اس راوی کے بارے میں پوری چھانبین کرتے. کہیں قبلہ کی طرف تھوکا تو نہیں ہے, کہیں جھوٹ بولا تو نہیں ہے. اگر ذرا سا بھی کچھ شبہ ہو جاتا اس راوی کی روایت کو نہیں لیتے. حضرت امام بخاری حضرت امام مسلم دونوں حضرات نے کتابیں تحریر فرمائی, ترتیب دی ہے, مگر جمہور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ کتاب بخاری تمام کتابوں میں قرآن شریف کے بعد سب سے افضل درجہ رکھتی ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ اصح البخاری. کتاب بخاری میں 7225 حدیثیں ہیں, جن میں 4000 حدیثیں مقررات کو حذف کرنے کے بعد بھی ہیں, اور ہر حدیث اپنی جگہ بے مثل و بے مثال ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ آپ جاتے تھے بصرہ کے محدثین کے پاس حدیثیں نقل کرنے کے لیے, وہ سب لکھ کر کے لاتے. 15 دن گزر گیا, 16 دن گزر گیا, امام بخاری کچھ نہیں لکھتے تھے. ان تمام ساتھیوں نے کہا کیوں جاتے ہو, جانے کا کیا فائدہ ہے, کیا لوگے تم, کیوں جاتے ہو محدثین کی بارگاہ میں جب لکھتے نہیں ہو, کچھ محفوظ نہیں کرتے. حضرت امام بخاری نے فرمایا ایک دن اچھا بیٹھو, تم نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ ان ساتھیوں نے کہا 15,000 حدیثیں لکھی ہیں. آپ کی ہماری بچیاں 6 مہینے میں سال بھر میں 70-80 صفحہ پڑھاؤ, مگر امام بخاری کے ساتھیوں نے 15 دنوں میں 16 دنوں میں کتنی حدیثیں پڑھی؟ 15,000. امام بخاری پر جب تانا کی تان دیا ان لوگوں نے, تان کیا, امام بخاری فرمانے لگے اچھا بیٹھ سناؤ جملے تو تم نے لکھا. جب وہ سنانے لگے تو تاریخ لکھنے والے بتاتے ہیں حضرت امام بخاری نے ان 16 دنوں میں 15,000 حدیثیں جو سنی تھی سب زبانیں یاد تھی. جن لوگوں نے لکھا تھا اس میں تو غلطیاں تھیں, مگر امام بخاری کے یاد کرنے میں کوئی غلطی نہیں تھی. ان ساتھیوں نے اپنے کاپیوں کی اصلاح کی. اللہ امام بخاری بغداد شریف آئے, لوگوں نے کہا بڑا شعرا ہے, بڑے ذہین ہیں, بڑے فقیر ہیں, بڑا حافظہ کبھی ہے, اور امتحان لیتے ہیں. 10 علماء کو تیار کیا اور ان 10 لوگوں نے 10 حدیثیں غلط انداز میں, راوی غلط, متن غلط, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر سب کر کے یاد کیا. جب وہ پڑھنے لگے حضرت امام بخاری سر جھکائے بیٹھے تھے, ہزاروں محدثین عوام سب کے بیچ میں. حضرت امام بخاری فرماتے لا علم هذا الحديث, لا علم هذا الحديث, لا علم هذا الحديث. میں اس حدیث کو نہیں جانتا, میں اس حدیث کو نہیں جانتا. جو خواص تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ کیا ہے, مگر جو عوام میں تھے وہ سوچنے لگے کہ شاید امام بخاری کو حدیث نہیں آتی. مگر جب سب لوگوں نے اپنی حدیثیں پیش کر دی, 10 لوگوں نے 10 حدیثیں, 10 حدیثیں, کتنی حدیثیں ہو گئے؟ 100 حدیثیں. امام بخاری کھڑے ہوئے, وقت کا امام جس کو امام المحدثین کہا جاتا ہے, امیر المومنین فی حدیث کہا جاتا ہے, امام بخاری کہا جاتا ہے, وہ کھڑے ہوئے اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پہلے وہ حدیث پڑھتے جو آدمیوں نے غلط پڑھی تھی, پھر اس کو صحیح کر کے پڑھتے, پھر غلط والی پڑھتے, پھر صحیح پڑھتے, پھر غلط پڑھتے, پھر صحیح پڑھتے. جو لوگوں نے غلط پڑھی
आई थी उसको भी पढ़ते और जो सही थी उसको भी पढ़ते। 100 गलत हदीसें पढ़कर उन 100 की सेहत के साथ उन हदीसों को पढ़ा, पूरे मजमे में नारे तकबीर बुलंद हुआ और सबों ने कह दिया ये बच्चा इमामुल मुहद्दिसीन है। ये उनकी किताब बुखारी है, इतनी शानदार किताब। इस बुखारी की इब्तिदा किताबुल वही से हुई। क्या बताऊं, वक्त नहीं है तफसील बताने का। आखिरी बात इमाम बुखारी ने किताब तौहीद का बांधा और किताब तौहीद में जो बात रखा है वो रखा नज़मुल मवादीन अल क़िस्ता। ये हदीस पाक कुरान शरीफ की आयत करीमा से बात बांधा। आपका तरीका था कोई बात बांधते तो पहले कुरान की आयत, फिर कोई हदीस मशहूर, फिर उससे मुतालिक हदीस को उसमें दखल फरमाते। हजरत इमाम बुखारी ने आखिरी बात जो बांधा है मीजान, अदल का मीजान कायम करने का। कल मैदान महशर में अल्लाह ताला मीजान अमल कायम फरमाएगा और उसके बारे में फरमाया उसका पल्ला इतना बड़ा होगा तराजू का कि एक पल्ले में 7 आसमान 7 जमीन रख देंगे, फिर भी उसमें कम महसूस होगा। दाहिना पल्ला अर्श आज़म के दाहिने जन्नत की तरफ जिसमें नेकियां तौली जाएंगी, बायां पल्ला अर्श आज़म के बाएं जो जहन्नम के करीब होगा उसमें वो रखा जाएगा, नेकियां तौली जाएंगी। और इसकी जब ख्वाहिश होते सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला ने जब दिखाया पल्ला तो उस तराजू को देखकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। और ये तराजू हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी में होगा, वहीं पर अमल तौले जाएगा। क्या बताऊं, बातें बड़ी हैं तो कैसे समेटूं। लेकिन इतना समझे कि क़यामत का मैदान जो कायम होगा उसमें मीज़ान अमल कायम होगा, जो अमल तौले जाएंगे ये सारे अमल इस बुनियाद पर तौले जाएंगे ताकि सबको इत्मीनान क़ल्बी हो। और असल मकसद ये होगा ताकि सब हमारे नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत को देख ले और नबी का मकाम पहचान ले। उस्ताद ज़मान हस्ते अल्लामा हसन फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन्हें काते मज़लूम महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, वरना अल्लाह ताला जानता है जन्नती कौन जहन्नमी कौन, वो जहां चाहता जिसको उनके अमाल के मुताबिक पहुंचा देता। मेरी बेटियों, ये कुरान ये हदीस पाक की आखिरी, ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक आज आपको पढ़ना है, जिसके बारे में ये अच्छी तरह आप जानती हैं कि ये हदीस पाक पढ़ने के बाद गोया की बुजुर्गों ने फरमाया उसने दोनों जिल्द बुखारी की पढ़ ली। मैं इस सिलसिले में बातें बहुत है, फिर कभी मौका मिला तो कुछ अर्ज कर दूंगा। मैं हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खुर्शीद रजा साहब से कहूंगा कि वो आखिर हदीस पढ़ाकर इस बज़्म का इख्तिताम करें। और ये मक़बूलियत दुआ की घड़ी है। आप हज़रात के दिल में जो भी दुआ हो, नदीम भाई कारोबार में आप परेशान हैं, दिल में नियत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आज के बाद से कोई परेशानी नहीं होगी। जिसके दिल में भी जो परेशानी हो सब दुआ कर लें। मेरी वालदा अलील है, अस्पताल में आईसीयू में है, सब लोग मेरी वालदा के लिए भी दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती शिफा अता फरमाए। मेरे लिए भी सेहत व सलामती की दुआ, मदरसे के लिए तामीर की दुआ, जमीन की दुआ आप सभी हजरात कर दें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये हमारे तमाम तलबा, मेरे बहुत सारे शागिर्द यहाँ हैं, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। और एक बात और आपको बताता चलूं, मदीना शरीफ में हुजूर ताजुल शरीआ अल्लामा अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने मुझे सनद हदीस की इजाजत पर रहमत फरमाई। खिलाफत मुझे रुदौली शरीफ में दी और हदीस पाक रिवायत करने की इजाजत की सनद मदीना शरीफ में दी। वो
सनद हदीस मैंने जामिया मोइनिया के तालिबात को भी दिया है और गुलशन फातिमा की भी तालिबात को दिया, बहुत सारे उलमा को भी दिया। आज भी मैं उस हदीस की रिवायत करने की इजाजत अपनी 9 तालिबात को अता करता हूं। और साथ ही साथ मोहतरमा आलिमा शादमा खातून प्रिंसिपल या कुलिया, मोहतरमा आलिमा फाजिला रागिया खातून नायब प्रिंसिपल कुलिया को भी वो इजाजत मैं देता हूं और उसकी सनद मेरे पास छपी हुई है। मैं उस सनद को लाया हूं, सब पे सबका नाम लिखा हुआ है। वो सनद इन सब बच्चियों को मैं पेश करता हूं। अल्लाह ताला मेरे लिए पहले, बाद में इनके लिए अल्लाह ताला ज़ख़ीरे आखिरत बनाए। और आप ये कहीं ना सोचिएगा कि रिवायत हदीस की सनद बच्चियों को दे दिया। सबसे ज्यादा हदीसें अगर आपने पढ़ी हैं तो पढ़ी होंगी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मुहातुल मोमिनीन और दीगर सहाबियात से हदीसें मरवी हैं। औरतों को भी हदीसें रिवायत करने की इजाजत है, बशर्ते कि वो सेहते ईमान और सेहते अमल पर कायम रहे। इसी शर्त के साथ मैं इन्हें इजाजत देता हूं और ये सनद हदीस जो सब मौजूद है इंशाअल्लाह ताला भी खत्ते बुखारी के बाद आप लोग हासिल कर लेंगी। और जो सनद फजीलत है वो मोहतरमा शादमा खातून साहिबा अपने रजिस्टर के मुताबिक देंगी, उसे आप ले लीजिएगा और छुट्टी होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। छुट्टियों में आप अपने फराइज से न भूलें, मसल के आला हजरत पर कायम रहें और साथ साथ में नमाज, रोजा, दीगर अमाल, कुरान की तिलावत पर छुट्टियों में अपने घरों पर भी कायम व दायम रहें। और 29 मार्च को इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर इस कुलिया में आपको तशरीफ लाना है। जो फारिग हो गई उनके लिए जामिया मोइनिया का दरवाजा खुला है तखस्सुस के लिए, और बाकी मौलमात, बाकी तालिबात के लिए कुलिया में आने का दरवाजा इंशाअल्लाह खुला है जब तक के फारिग न हो जाएं, और फारिग होने के बाद भी हमेशा खुला रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी काबिश कबूल फरमाए। हम लोगों ने बिला रिया सिर्फ खिदमत दीन के लिए, मग़फ़िरत का ज़रिया बनाने के लिए मदरसे कायम किए हैं। अल्लाह अपनी रज़ा हमें अता फरमाए। सगीर भाई, हाजी कराम साहब, अखलास भाई, मसरूर भाई, सबको अता फरमाए। हाजी गुलाम नबी साहब, हाजी मुजीब साहब, हम लोगों को इससे कोई दुनिया का कोई फायदा मकसूद नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला दुनिया में फायदा दे दे तो कुछ से हमें इनकार भी नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।